Welcome to Academy Hub. In this second episode of series on legal discourse, हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021 के संदर्भ में। ऑन दिस 23 मार्च बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल के पटल पे आते ही हल्फा कुछ यूं मचा कि नज़ारा कुछ ऐसा हो गया। तो हम बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ है इस विधेयक में जो इसने माननीयों को मदारी बना दिया, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी कंट्रोवर्शियल कंपोनेंट्स हैं इस एक्ट के, उनकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि तय न्याय पद्धति से ये कितना परे और कितना समीप है। एंड एट द एंड वी विल ट्राई टू डिकोड द मीनिंग एंड एक्सटेंट ऑफ दिस एक्ट। बट बिफोर वी बिगिन 5 की पॉइंट्स में इंट्रोड्यूस होते हैं इस एक्ट से एंड इसके कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस। सिंस 1912 से पहले बिहार बंगाल का पार्ट हुआ करता था, एंड देयरफॉर प्रायर टू 2007 बिहार पुलिस वाज रेगुलेटेड बाय द पुलिस एक्ट 1861, एंड टिल दिस न्यू एक्ट Bihar Special Police was governed by Bengal Military Police Act 1861. 2007 में टू रेगुलेट बिहार पुलिस एक्ट 2007 was enacted और रेगुलर पुलिस इस एक्ट के अकॉर्डेंस में गवर्न होने लगी, बट स्पेशल पुलिस जो थी दैट वाज स्टिल गवर्न बाय द ओल्ड कॉलोनियल बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट 1892. On 23 March 2021 new bill was introduced in legislative assembly and next day गवर्नर एसेंट मिलते ही एक्ट बन गया which is now called बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट 2021. इस एक्ट के अकॉर्डिंग what was बिहार मिलिट्री पुलिस now will be called बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, and as per section 3 of the act functions of बिहार स्पेशल पुलिस जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर से कम्बैटिंग विथ एक्सट्रीमिज्म तक एक्सटेंड करता है। साथ ही दे विल बी इंटरेस्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ एनी स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट। हियर स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट मीन्स विशिष्ट प्रतिष्ठान लाइक एयरपोर्ट्स, लाइक महाबोधि टेम्पल एट बोध गया, लाइक मेट्रोज विच आर एट टू रन इन द सिटी पटना, एंड फर्दर state government may award any other function by notification as the need arise. Now बिहार आर्म्ड स्पेशल पुलिस एक्ट के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग विदाउट अरेस्ट वारंट करने की पावर प्रोवाइड किया गया है, जिसको क्रिटिक्स ने ड्रैकोनियन बताया है। हम समझेंगे कि ये कितना ड्रैकोनियन है, बट प्रायर टू दैट जानते हैं व्हाट इज अरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट, it is imposition of total restraint on personal liberty of an individual by lawful authority. Here lawful authority means legal authority or apparent legal authority. Generally arrest and search are judicial decision because it infringes fundamental right of an individual, and इसीलिए for both this process warrant is required. But as per code of criminal procedure, in case of cognizable offense arrest can be made by a police officer. Here cognizable offense का meaning है kind of serious offense which are categorized in a schedule 1 of a code of criminal procedure. Now जो conditions हैं in order to make arrest, these are that prima facie the offense must be cognizable in nature. Then there must be a reasonable belief that arrest is necessary to prevent further commission of offense, or there exists a chance of evidence tampering, or without arrest the presence of accused in court cannot be ensured. So these are 3 conditions. Any one of them is satisfied, then arrest can be made. Moreover, section 41 clause E के according, if anyone obstructs a police officer while in the execution of his duty, then also arrest can be made. Further, section 42 के according non cognizable offense के केस में भी arrest can be made without warrant, but just to ascertain the name and address of the accused.
नाउ कंसर्न्ड एक्ट के सेक्शन 7 में पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट इज प्रोवाइडेड. Accordingly, any special armed police, while being entrusted with the security of a specified establishment, can arrest a person who voluntarily causes hurt or uses criminal force or attempt to do so or even threaten to do so to any employee of that establishment or any special armed police officer entrusted there. Further, any person who obstructs a special armed police in the execution and discharge of his duty, then also arrest can be made without warrant. Moreover, special armed police reasonable suspicion के आधार पर भी arrest कर सकती है. If the suspicion is that a cognizable offense is going to be committed by the person in establishment premises. Now to be clear, विदाउट वारंट अरेस्ट करने के पावर सिर्फ उन्हीं एसएपी को प्रोवाइडेड है जो स्पेसिफाइड एस्टेब्लिशमेंट के सिक्योरिटी में तैनात है. एंड अगर आप उस एस्टेब्लिशमेंट के आसपास ऐसी कोई गतिविधि करते हैं तभी भय की जरूरत है. नाउ सीआरपीसी में जो अरेस्ट के प्रोसीजर है, इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट देखें तो इस एक्ट में भी प्रोवाइडेड प्रोविजंस उसी के कॉन्सोनेंस में लगते हैं और ऐसा कुछ एलियन जो कि कहीं और क्रिमिनल कंसेप्ट से एक्सपोर्ट किया हुआ हो ऐसा कुछ नहीं दिखता. नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, अलाइक अरेस्ट सर्च इज ऑल्सो जुडिशियल डिसीजन एंड जनरली एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर्च की जरूरत होती है. प्राइमरली सर्च मजिस्ट्रेट के वारंट इशू करने के बाद ही संभव होता है, बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज सीआरपीसी में सर्च विदाउट वारंट की भी प्रक्रिया इन्विसेज्ड है. एज पर सेक्शन 165, a police officer making the investigation have reasonable ground to believe that any particular thing can be found at a particular place and undue delay can frustrate the process. In that circumstances, without warrant search is possible. एक लीडिंग केस है एम्पेरर वर्सेज मोहम्मद शाह. इस केस में भी नेसेसिटी एंड अनड्यू डिले को कीवर्ड माना गया है इन ऑर्डर टू सर्च विदाउट वारंट. नाउ कंसर्न्ड एक्ट में भी अगर हम देखें तो सर्च विदाउट वारंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो अनड्यू डिले एंड नेसेसिटी ही है. एज पर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, एनी नोटिफाइड रैंक स्पेशल आर्म्ड पुलिस if have reason to believe that search warrant cannot be obtained without offering the offender an opportunity to escape or to conceal the evidence, in that case he can search the person and his belongings without warrant. And 165 में जो सर्च है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए ही पॉसिबल है एंड पैरामाउंटली पर्सन के सर्च का पावर प्रोवाइड नहीं करता. बट सेक्शन 8 ऑफ द कंसर्न्ड एक्ट अ काइंड ऑफ जनरल सर्च नेचर का है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली पर्सन के सर्च को भी परमिट करता है. बट याद रहे कि ये सर्च सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के रिगार्ड में ही पॉसिबल है. नाउ इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल कॉग्निजेंस का जो मसला है ये थोड़ा कंसर्निंग लगता है. कॉग्निजेंस का मतलब होता है जुडिशियल नोटिस. किसी भी केस में जब जुडिशियरी इन्वॉल्व होती है देन फर्स्ट स्टेप कॉग्निजेंस का होता है. नाउ सीआरपीसी के सेक्शन 197 क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 को अगर हम साथ में डिकोड करें then it provides power to the state government to exclude any security forces from the ambit of judicial cognizance by making provision in this regard. And until sanctioned by the state government, no judicial cognizance can be taken in this behalf. So concerned act में इस provision के consonance में ही section 15 ऐड किया गया है और स्पेशल आर्म्ड पुलिस को कॉग्निजेंस से इम्यूनिटी प्रोवाइड किया गया है until sanctioned by the officer appointed by the government in this behalf. Now last controversial point जो है that is protection for an offence committed in pursuance of superior's order. Section 17 of the act के according, in any suit or proceedings against any member of the special armed police for any act done by him in pursuance of an order of a competent authority, it shall be lawful for him to plead that such act was done by him under the authority of such order. Now इंडियन पेनल कोड के जनरल एक्सेप्शन के सेक्शन 76 में इस प्रोविजन के कॉन्सोनेंस में हमें एक प्रोविजन मिलता है. सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग, acts done by a person bound by law or by mistake of fact believes himself to be bound by law is protected from criminal liability.
यहाँ बाउंड बाय लॉ का मतलब है लीगली बाउंड टू डू एंड इफ ओमिटेड इट विल बी इलीगल। नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण इफ ए पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ देन ही इज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट को समझें देन इट कैन बी इधर लेटेंट और पेटेंट। लेटेंट के केस में मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्लियर नहीं होता और ऐसे केस में अगर सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर पे कोई ऑफेंस कमिट होता है देन पर्सन इज नॉट लाइबल। बट अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट पेटेंट है मतलब ऑर्डर की इलीगैलिटी बिल्कुल क्लियर है देन द पर्सन विल बी लाइबल। नाउ कंसर्न्ड एक्ट के सेक्शन 17 में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है वो लेटेंट एंड पेटेंट दोनों ही केस में पर्सन को लाइबिलिटी से एब्जॉर्ब करता है। मीनिंग दैट अगर कोई भी ऑफेंस स्पेशल आर्म्ड पुलिस द्वारा किया जाता है तो सिर्फ ये आर्गुमेंट कि ये एक्ट सुपीरियर अथॉरिटी के ऑर्डर पे हुआ है उस स्पेशल आर्म्ड पुलिस को कंप्लीट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नाउ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस एक्ट में जो अरेस्ट विदाउट वारंट एंड सर्च विदाउट वारंट का पावर है वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट तक ही सीमित है। मीनिंग दैट if a special armed police is on duty of controlling rights then he cannot arrest without warrant under this act। बात करें एक्सटेंट ऑफ द एक्ट की तो ये कुछ CISF एक्ट तो कुछ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट से मिलता है। CISF एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को सिमिलर पावर प्रोवाइड किया गया है विथ रिगार्ड टू अरेस्ट एंड सर्च। एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की बात करें तो ये डिस्टर्ब्ड एरिया में इम्प्लीमेंट होता है लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर जहां इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम्स हैं। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी एक्ट ऑफ डिप्लॉयड फोर्सेस को जुडिशियल कॉग्निजेंस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। नाउ बिहार स्पेशल आर्म पुलिस एक्ट, CISF एक्ट एंड आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट तीनों ही एक्ट के अकॉर्डिंग आफ्टर अरेस्ट द एक्यूज्ड शुड बी हैंडेड ओवर to the local police without delay with a written report and further proceedings जो होती हैं वो CRPC के अकॉर्डिंग ही होती है। अब जो जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव एक्शन के सुपरविजन से एक्सक्लूड किया गया है यह प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इन्फ्रिंज करता है एंड जो प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस है जो कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है इसको भी चोट पहुंचाता है। चेक एंड बैलेंस के बिना पावर के मिसयूज होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और मिसयूज ऑफ पावर बाय पुलिस कोई नई बात तो है नहीं। खासकर बिहार के संदर्भ में बात करें तो ये और भी नई नहीं है। इस हालात में न्याय व्यवस्था को बनाए रखते हुए पावर एब्यूज को लिमिट करना एक चैलेंजिंग टास्क लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेल्प अस टू हेल्प यू बाय सब्सक्राइबिंग टू एकेडमी।